All right. Okay, so I'll start from the starting wala part, right? So we were discussing the digestive system and what are the events which are happening in the digestive system. That is something we were discussing. So we have already seen that you have a salivary gland. If you remember, we have like 3 pairs of salivary gland inside the buccal cavity. 3 pair होती है आपके salivary gland की buccal cavity के अंदर. मतलब अगर आपसे कोई पूछता है कि टोटल कितनी है तो आप बोल सकते हो 6. You have the 6 salivary gland inside the buccal cavity. They are going to release the enzymes. वो आपके कई सारे enzymes या मैं कहूँगा in a simple term I can say they will release saliva and the saliva will have number of enzymes. So you'll have amylase, lysozyme. They will have some antibody. So all those things are being seen in the saliva. याद रखना अमाइलेज का यहाँ पे काम होता है फॉर द डाइजेशन ऑफ स्टार्च. So 30% of the starch will get digested with the help of the amylase and that will be happening in the buccal cavity itself. तो आपके माउथ पार्ट में स्टार्च का डाइजेशन चालू हो जाएगा और 30% स्टार्च तो आपका अमाइलेज ही डाइजेस्ट कर देगा. Lysozyme was another enzyme which you find in the saliva. This enzyme will have an antimicrobial property. That means अगर कोई माइक्रोब या कोई बैक्टीरिया अगर आपके माउथ में आ रहा है along with the food तो उसको वो खत्म कर देगा, उसे वो किल कर देगा, right? So lysozyme is something known for that. So that is something we have done. Along with that, so you know you have the oral cavity, you have a salivary gland, esophagus, stomach, liver, then you have a gallbladder, pancreas, small intestine, large intestine, and then inner. So that is your complete digestive tract, something you are familiar with. So ये है आपके locations आपके salivary gland के. So 3 on one side, 3 on another side. So basically you have like total 6 salivary glands. So 3 pairs of salivary gland you get to see. Names have been mentioned here, but you don't have to remember the names right now. इतना रखना कि उनका number कितना होता है. How many number of glands you have is something should be clear to you. Now, after that, now what happens in a digestive system? कॉम्प्लेक्स फूड जो भी आप खा रहे हो, आप रोटी खा रहे हो, चावल खा रहे हो, दाल खा रहे हो, पल्सेस खा रहे हो, मीट खा रहे हो, जो भी आप खा रहे हो, that has to be digested, that has to be broken down and that has to be digested in such a way ताकि उसको हम एब्जॉर्ब कर सके, आपका इंटेस्टाइन उसे एब्जॉर्ब कर सके. So you find complex food converted into the simple food which is easy to absorb. So that will be happening in your intestine, stomach और intestine के अंदर ये आपका events यहाँ पे होंगे. Carbohydrate, fats, proteins have been broken down into something like a glucose. मतलब अगर आपको अगर मैं एग्जांपल दूं तो अगर आप रोटी खा रहे हो या चावल खा रहे हो तो उसमें आपका स्टार्च होता है, उसको जब आप ब्रेक डाउन करते हो यू गेट द ग्लूकोज. व्हेन यू आर ईटिंग समथिंग लाइक अ फैट लाइक योर बटर, घी, समथिंग, देन यू विल गेट अ फैटी एसिड. एंड जब आप प्रोटीन कंज्यूम करते हो व्हिच कैन बी इन योर मीट, egg, pulses, so you will be getting the amino acids. So you have to break them down. In खाने के particles को आप break down करोगे and then you will absorb them in your intestine. So वही आज हम देखेंगे. तो ये मैं कल लास्ट क्लास में अगर आपको याद हो बिफोर माय सिस्टम कोलैप्स हमने ये देखा था. आपने एक बार खाना चबा लिया, you are going to engulf that food, right? You are going to swallow that food and then you will find your muscular movement आपका जो होता है उसकी वजह से आपका फूड आपका जाएगा आपके स्टमक के अंदर. That is my peristalsis. So peristalsis के थ्रू आपका खाना यहाँ पे मूव करके आपके स्टमक तक आ रहा है. Okay, so that rhythmic movement of the wall of your alimentary canal can be called as my peristalsis. ठीक है, ये आपको सिर्फ esophagus में नहीं, you can also find them in the intestine and in the large intestine as well. ये rhythmic movement आपको हमेशा मिलेगा. Now, this is something we have done. We have seen कि आपके स्टमक में क्या होता है. So in the stomach you will have a secretion of a gastric juice. आपका गैस्ट्रिक जूस सिक्रेट किया जाएगा स्टमक के अंदर और इस गैस्ट्रिक जूस का पीएच जो आपका होता है यहाँ पे दैट इज गोइंग टू बी अराउंड 2. सो दैट शुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू दैट अ पीएच ओवर हियर इज गोइंग टू बी अराउंड 2. सो काफी लो पीएच आपको मिलता है गैस्ट्रिक जूस की वजह से. एंड द रीजन द पीएच इज गोइंग टू बी सो लो इज बिकॉज ऑफ द HCl. आपका जो HCl यहाँ पे होगा वो आपका जब स्टमक में आता है इसकी वजह से आपका पीएच यहाँ पे काफी लो होता है. सो यू हैव एसिडिक मीडियम. Now the question is that why you need to have the acidic medium, and the answer is for the activation of enzyme. I need to activate my enzymes which are there in the stomach, and to make that happen, I need to have this acidic medium. अगर आपका acidic medium आपका maintain नहीं होता, तो आपके enzymes यहाँ पे active नहीं हो सकते हैं. आपने पता है एक बात सुनी होगी, आपको बताया जाता है, आपके घर वाले बताते हैं कि जब आप खाना खा रहे हो तो आपको पानी नहीं पीना चाहिए. You should not drink water while you are having your food. And the reason is if you have your water along with the food ना, आपका जो intestine या stomach के अंदर जो आपका जो gastric juice है वो आपका dilute हो जाएगा, वो आपका dilute हो जाएगा, आपका pH आपका maintain नहीं हो पाएगा. अगर आपका pH सही से maintain नहीं होता आपके stomach के अंदर,
देन खाना भी आपका सही से डाइजेस्ट नहीं होता, राइट? या स्टमक के अंदर आपका खाना डाइजेस्ट सही से नहीं होगा. So that is why you have to make sure that you are not drinking water while having your food, because उससे आपका pH change हो सकता है and it can affect the working of the enzyme. Pepsin is known for the protein digestion. ये आपको स्टमक में मिल जाएगा. And you will find HCl का एक और काम होता है killing of microbes. ये microbes को kill करने में आपकी मदद करता है. So we have a pepsin, we have a HCl, and there's one more thing in the gastric juice, that is my mucus. Mucus basically covers the internal lining of the stomach, और इसके वजह से आप स्टमक की वॉल को प्रोटेक्ट कर सकते हो. So mucus is going to cover the internal lining of the stomach, and because of that you are able to protect the internal lining of the stomach. तो ये भी हमने लास्ट क्लास में देख लिया था. Then we have discussed about the renin. ये आपका एंजाइम है जो आपके मिल्क प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, but you won't find them in adults. You'll find them in the individuals at like till the age of your 10 to 12 years of age. You can have this enzyme. So now we'll go beyond this. हमने इतना देख लिया, हमने देख लिया कि हमारा स्टमक तक खाना आ रहा है, and now from there we'll start moving ahead of that. So now we'll see what are the other things I'll get to see. Okay. So now we have seen the stomach. We can see very clearly see over here the stomach over here. आपका esophagus से खाना आ रहा है स्टमक के अंदर, and then स्टमक में आपका होगा यहाँ पे digestion, right? And then स्टमक से खाना आपका जाएगा आपके small intestine के अंदर. Now there's one thing you have to know. There's one thing should be very much clear to you. कि जब आपका खाना स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में जा रहा है, सो एसिडिक मीडियम आपका आगे जा रहा है. ओके, सो व्हेन द फूड इज मूविंग फ्रॉम स्टमक टू इंटेस्टाइन, याद रखना एसिडिक मूवमेंट और एसिडिक मीडियम इज गोइंग इनटू द इंटेस्टाइन. सो दैट शुड बी क्लियर टू यू. ये बात आप समझ सकते हो कि यहाँ पे HCl था, एंड बिकॉज ऑफ दैट यू विल फाइंड जो भी आपका खाना आगे बढ़ेगा, इट विल हैव द एसिडिक मीडियम. सो इट विल हैव द एसिडिक like content will move into the small intestine. Okay, now there is one more thing you have to remember. स्टमक जो आपका होता है, इसके अंदर आप खाने को इनिशियली करोगे स्टोरेज. इट इज नोन फॉर द स्टोरेज ऑफ फूड एज वेल. तो डाइजेशन तो यहाँ पे आपका हो ही रहा है, डाइजेशन आपका यहाँ पे होता है, बट अलॉन्ग विद दैट यू आल्सो फाइंड स्टोरेज इज आल्सो बीन डन. सो आपको जनरली 3 से 4 घंटे के लिए खाने को स्टमक में रखा जाएगा, and then slowly the food will be sent into the small intestine. So after that you will find the food over here will come into the small intestine. तो खाने को आप पहले यहाँ पे स्टोर करते हो, and then slowly आपके खाने को आप 3-4 ml के कंसंट्रेशन में आप उसे आगे बढ़ाते हो. तो ये एक चीज आप यहाँ पे याद रखना, that it is known for the digestion and storage, and then slowly it will move the food into the small intestine. Let's try to see over here. तो ये आपका खाना आया, खाना जैसे आया आपके एंजाइम्स आए, डाइजेस्टिव जूस आया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड आया, उसने क्या किया, इसको डाइजेस्ट कर दिया. And after digestion, what will happen? After some time, the food will slowly get into your small intestine. So इतनी बात आपको यहाँ पे याद रखनी है. This should be clear to you. Please याद रखना, स्टमक के अंदर जनरली चीजें आपकी एब्जॉर्ब नहीं की जाती. You don't find major things getting absorbed in the stomach. यहाँ पे सिर्फ हमारा प्रोटीन डाइजेस्ट हुआ था. That should be clear to you, right? And you don't find any kind of absorption happening over here. यहाँ पे आपको कोई भी absorption आपके यहाँ पे नहीं हो रहा. अगर आप याद रख सकते हो तो आप याद रखना कि एक चीज आपकी एब्जॉर्ब की जाती है स्टमक के अंदर, एंड दैट इज योर अल्कोहल. अल्कोहल इज नोन टू गेट एब्जॉर्ब इन द स्टमक. सो दैट थिंग यू कैन रिमेंबर, दैट अल्कोहल इज द ओनली थिंग व्हिच गेट्स एब्जॉर्ब्ड इन स्टमक. Now what will happen? Now your food will now start moving into the small intestine. Now there is something you have to understand over here. See, अब इस पिक्चर को आप ध्यान से देखिए. जब आपका खाना स्टमक के अंदर आया, इसको हम करते हैं स्टोरेज, और डाइजेशन आपका स्टमक में होगा. Now I'll give you the example over here. Assume that you just have your food. Assume करो कि अभी आपने अपना खाना खाया है, अभी आपने अपना लंच किया है, और लंच करने के बाद अगर मैं आपको अपसाइड डाउन खड़ा कर दूं, अगर मैं बोलूं कि सर नीचे पैर ऊपर, if I make you do what you call as a headstand, right, or a handstand, if I make you do that, तो क्या आपका खाना बाहर निकलने लगेगा आपके माउथ से? Will that happen? Quickly tell me yes या no. Upside down खड़ा कर दूंगा तो क्या ऐसा होगा कि जो भी आपने खाया था वो slowly आपके माउथ से बाहर निकल जाए? ऐसा होगा क्या? No sir. That won't be happen. There is no chance of that thing happening over here. बताइए बेटा, क्या क्वेश्चन है आपका, बताइए. Sir, it doesn't happen because of the muscles. Basically, there's a passageway at the start of the esophagus in the throat, which prevents the food. And basically, it prevents. Let's say right now, there's a saying that you cannot drink water while you're breathing. So there's a passageway that will stop food from coming out after you do a handstand. See, so now I'll tell you how that doesn't actually happen. See, so what will happen now? You have this stomach, and you have a valve over here. You will find a valve. Now with this a valve known as my sphincter.
सो इज द स्पिंटर वाल्व जिसे हम कहते हैं लोअर इसोफेजियल स्पिंटर. नाउ दिस लोअर इसोफेजियल स्पिंटर व्हिच यू कैन आल्सो कॉल एज अ वाल्व, ये वाल्व आपका होता है इसोफेगस और स्टमक के बीच में. सो दिस वाल्व व्हेन द फूड गेट स्टोर्ड ओवर है, जैसे आपका खाना अंदर आ चुका है तो दिस वाल्व विल गेट क्लोज्ड. सो ओवर हियर यू हैव दिस वाल्व लोअर इसोफेजियल स्पिंटर एंड दिस स्पिंटर विल गेट क्लोज्ड. तो जब आप अपसाइड डाउन होते हो तो ये आपका बंद रहता है. अब जब आपका ये बंद रहेगा यहाँ पे तो सिंपल सी बात है, आपका खाना बाहर नहीं आएगा. So that is something should be clear to you, that your lower esophageal sphincter is something which works as a valve, and this will get closed once the food has entered inside the stomach, right? Similarly, you will also have something like my pyloric sphincter. अब pyloric sphincter जो आपका यहाँ पे है, ये क्या कर रहा है? It is between what? It is between the stomach and the small intestine. So ये भी आप यहाँ पे देख लो, that between the stomach and your small intestine you have this valve over here. So इसके बीच में भी आपको यहाँ पे valve मिल रहा है, right? That is my pyloric valve. Now let's see what this pyloric valve will be known for. So when you have this pyloric valve over here, जब आपका यहाँ पे pyloric sphincter जिसे हम बोलेंगे यहाँ पे, right? जब आपका यहाँ पे आपका pyloric sphincter यहाँ पे आपका present है, तो ये करता क्या है? ये इस चीज का ध्यान रखता है कि खाना आगे ना बढ़े. So it will ensure that whatever the food has like brought into the stomach, it has to be kept over there for a certain amount of time. उस खाने को आपको वहां पे रखना है एक certain amount के time के लिए. And then after that you can slowly push that into the intestine. You can slowly then push the food into the small intestine. तो याद रखना ये आपका इसे close करके यहाँ पे रखेगा. So these two valves have to be clear to you. You have a lower esophageal sphincter. ये आपका होता है between the esophagus and your stomach के बीच में. And then you have a pyloric sphincter which is between the stomach and the small intestine. Basically they are like a checkpoints. Yeah, I would say they are like a gates. जब ये ओपन होते हैं तब आपका खाना नीचे आएगा. सो अगर आपका इसोफेगस से खाना आ रहा है नीचे, जब आप खा रहे हो तब ये ओपन हो जाएगा, राइट? एक बार खाना अंदर आ चुका है, यू आर इन अ रेस्टिंग स्टेट, देन ऑटोमेटिकली इट विल गेट क्लोज डाउन. ओके, एंड पायलोरिक स्फिंक्टर व्हाट इट विल डू, इट विल आल्सो रिमेन क्लोज व्हेन यू आर ईटिंग योर फूड. जब आप खाना खा रहे होते हैं तब आपका स्फिंक्टर बंद रहता है ताकि आपका खाना आगे ना बढ़े. ओके, सो याद रखना स्टमक के अंदर आप 3 से 4 घंटे के लिए अपना फूड रख पाते बिकॉज दिस वाल्व्स आर वर्किंग ओवर देयर एंड दे विल एंश्योर दैट द फूड रिमेन्स ओवर देयर. ओके, नाउ यू शुड नो दैट व्हेन यू डू अ हेड स्टैंड और अ हैंड स्टैंड, खाना बाहर इसलिए नहीं आता क्योंकि ये बंद रहता है ना यहाँ पे, तो ये वाला पार्ट तो आपका यहाँ पे बंद रहेगा, दिस स्फिंक्टर ओवर हियर रिमेन द क्लोज. और अगर ये आपके यहाँ पे बंद रह रहा है देन समझ जाना कि आपका खाना कभी भी आपका लाइक आप हेड स्टैंड करो या आप कार्टव्हील करो, कुछ भी कर लो, आपका खाना बाहर नहीं आएगा. So that should be clear to you. So please remember my lower esophageal sphincter and pyloric sphincter and what they are known for. They behave like a valve and they're going to ensure that the food movement is being regulated. जब भी आपको खाने को आगे भेजना होगा तो उसको regulate करके आप आगे भेज सकते हो. So this is something should be clear to all of you. Now, after this, let's talk about my small intestine. Now, before getting into small intestine, see, अब यहाँ से आपका जो food होगा वो आपका जाएगा small intestine के अंदर. Stomach से it will move into the small intestine. But before that, let's try to understand some accessory glands. जल्दी हम लोग यहाँ पे कुछ accessory glands के बारे में हम यहाँ पे देख लेते हैं. Let's try to talk about all my accessory glands. Yeah, some accessory digestive glands, which are going to be super important for you. So one of them is going to be your pancreas. एक आपका यहाँ पे आपका होगा pancreas. Then you have something like your liver. One more very important one, right? You also have something like your gallbladder. You also have something like a gallbladder. So let's talk about this gallbladder, liver. इनकी हम बात करते हैं यहाँ पे, ये करते क्या है? So when I discuss pancreas, so let's start with the pancreas because that is the most important one. So याद रखना कि ये जो आपका accessory gland आपके सामने यहाँ पे pancreas, ये pancreas करेगा क्या? Now pancreas is known to release a large number of pancreatic enzymes. यहाँ से आपके कई सारे enzymes आएंगे. So pancreas is known to release a huge amount of your enzymes. So यहाँ से आपके काफी सारे enzymes आपके release किए जाते हैं. So large number of enzymes are coming from the pancreas, and those enzymes over here are called as my pancreatic enzymes. These enzymes over here are called as your pancreatic enzymes. So large number of pancreatic enzymes will come from the pancreas. That's one thing you have to know. Second thing याद रखना कि आपका pancreas even release करता है आपके कई सारे
hormones. So pancreas is also known to release certain hormones. अब यहाँ से कुछ hormones आ रहे हैं, but वो hormones का digestion को लेके कोई काम नहीं है. याद रखना, hormones का कोई digestion को लेके कोई भी काम नहीं होता. But याद रखना, you will find some hormones will come from the pancreas, and those hormones which are going to be coming from the pancreas are known as your insulin and your glucagon. Apparently you can just remember कि दो आपके हार्मोन होते हैं और ये आपके पैंक्रियास से रिलीज किए जा सकते हैं. So pancreas is known to release hormone as well, and they are also known to release the enzymes for the digestion. तो अभी हम हार्मोन सिर्फ उनके नाम देखेंगे, उनका रोल क्या होता है वो भी हमें देखना नहीं है, because we are studying the digestive system. Now आपका यहाँ से आपका आ गया एंजाइम्स आ गए. सो एंजाइम्स विल बी ऑफ लाइक बहुत सारे टाइप के एंजाइम आपको यहाँ पे मिल जाएंगे. आई कैन गिव फ्यू एग्जांपल्स लाइक लाइपेज. You can have something like your amylase again. यहाँ से भी आपका amylase आता है. Then you can have something like your trypsin. Then you will also have something like your chymotrypsin. So these are all my enzymes which you find coming from the pancreas. Now there is one thing should be very much clear to you. अगर मैं आपके सामने ये चार एंजाइम लिख रहा हूँ, लाइपेज, अमाइलेज, ट्रिप्सिन और कीमोट्रिप्सिन, मैंने सिर्फ चार ही लिखे, और भी कई सारे होते हैं, बट रिमेंबर दिस 4 एंजाइम्स. नाउ ऑफ दिस 4 एंजाइम्स अगर आपसे कोई पूछता है कि यार ये करते क्या है, तो याद रखना आपका जो ट्रिप्सिन और कीमोट्रिप्सिन होता है, ट्रिप्सिन एंड कीमोट्रिप्सिन इज नोन फॉर प्रोटीन डाइजेशन. दिस इज नोन फॉर योर प्रोटीन डाइजेशन. तो ये बात आप याद रखना. Trypsin and chymotrypsin is known for your protein digestion. So that should be clear to you. That's one thing should be clear to you. ठीक है, ये दोनों एंजाइम आपके जाए जाते हैं प्रोटीन के डाइजेशन के लिए. उसी के साथ साथ अगर आपसे कोई पूछता है कि मेरा लाइपेज क्या करता है, लाइपेज इज नोन फॉर व्हाट. सो लाइपेज के नाम से आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा दैट लाइपेज इज समवन हु इज गोइंग टू प्ले द इंपॉर्टेंट रोल इन माय लिपिड डाइजेशन. दैट विल प्ले द रोल इन माय लिपिड डाइजेशन. So that should be clear to you, right? And then you have the amylase. Amylase तो आप जानते हो, amylase क्या कर रहा था? Amylase is something which will act on the starch. बकल कैविटी याद करिए, बकल कैविटी के स्टार्च में भी एक्ट कर रहा था, right? आपके सलाइवा के अंदर था. वैसा ही amylase आपका पैंक्रियास से भी आएगा, and that will act on the starch. And please remember, if you can tell me how much percentage of starch was getting digested in the buccal cavity? कितना परसेंट स्टार्च मेरा बकल कैविटी में डाइजेस्ट हो रहा था? Anyone? No one. 30%. 30% स्टार्च आपका बकल कैविटी में डाइजेस्ट हो रहा था, और आपके जो इंटेस्टाइन होगा रिमेनिंग 70% आपका ये करेगा. रिमेनिंग 70% जो आपका डाइजेशन होगा यहाँ पे, दैट इज डन बाय माय पैंक्रियास ओवर हियर. सो ये एंजाइम्स यहाँ पे जो मैंने आपके सामने लिखे हैं यहाँ पे, ये याद रख लेना दैट पैंक्रियास से ये सारा कंटेंट आपका यहाँ पे आता है. सो दीज आर द कंटेंट यू विल फाइंड कमिंग फ्रॉम द पैंक्रियास. You also find hormone coming from the pancreas, but they will have a different kind of role. But याद रखना दो हार्मोन इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन भी आपके पैंक्रियास से ही आते हैं. ओके, सो दीज आर द फ्यू थिंग्स यू हैव टू नो. इज दिस थिंग क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्या यहाँ तक चीज आपको समझ आ रही है? आर द थिंग्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू यहाँ तक सबको? Yes, sir. राइट. Yes, sir. प्लीज लेट मी नो अगर कोई कंफ्यूजन या कोई दिक्कत आ रही है, देन प्लीज इंटरप्ट करके पूछ लेना. ओके, आई होप यू डू अंडरस्टैंड. वी हैव टू मेंटेन सम अ टेम्पो इन द क्लास ऑफ स्पीड, बिकॉज ऑल आई गेट इज योर 40 मिनट्स विद यू. ठीक है, बट अगर कभी अगर आपको लग रहा है कि सर रिपीट कर दिया जाए या आप स्लो हो जाओ, देन आई कैन डू दैट. ओके, नाउ along with these two things you will also find pancreas are also known to release some bicarbonates. ये कुछ bicarbonates भी release करते हैं. They are going to release some bicarbonates. They are going to release some bicarbonates like your HCO3. कुछ bicarbonates like your HCO3 आपके यहाँ पे release किए जाएंगे pancreas में into the small intestine. See, everything is coming into the small intestine. हार्मोन्स को छोड़ के सारा कंटेंट आपका आ रहा है आपके स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर. तो ये आप यहाँ पे याद रखिएगा. सो दैट इज समथिंग कैन नो. सो फ्रॉम पैंक्रियास एवरीथिंग विल कम इनटू द, यू कैन सी ये जो पिंक पर्पल कलर का जो आपका एरिया है, दैट इज माय स्मॉल इंटेस्टाइन. तो इसके अंदर आपका सारा का सारा आपका कंटेंट भेजा जाता है. ओके, नाउ लेट मी क्विकली टेल यू समथिंग अबाउट द लिवर. यहाँ पे लिवर का पिक्चर आपको दिख नहीं रहा, बट लेट मी टेल यू वन थिंग अबाउट द लिवर. दैट लिवर इज नोन फॉर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, फॉर्मेशन ऑफ बाइल. Formation of
बाइल जूस। आपका लिवर जाना जाता है आपके बाइल जूस बनाने के लिए। अब एक चीज आप यहाँ पे याद रखना कि जब आप बाइल जूस बनाते हो, बाइल जूस का अगर आपसे कोई कलर पूछे क्या होता है, तो बाइल जूस का कलर है आपका ग्रीन। बाइल जूस विल बी इन ग्रीन इन कलर। ओके, सो लिवर इज नोन फॉर फॉर्मेशन ऑफ द बाइल जूस। अब वो बनाता बाइल जूस है, बट वो स्टोर करता है उसे गॉल ब्लैडर के अंदर। सो द बाइल जूस इज गेटिंग फॉर्म्ड इन द लिवर, बट दिस बाइल जूस हैज टू बी स्टोर्ड इन द गॉल ब्लैडर। इसको बनाते हैं हम लोग लिवर के अंदर, बट इसका स्टोरेज किया जाएगा इनटू योर गॉल ब्लैडर। You can find them getting stored in your gall bladder. So that is something should be clear to you कि बाइल जूस को आप स्टोर करके रखोगे आप अपने गॉल ब्लैडर के अंदर। So if they ask you who plays a role in formation of bile juice, then you should say liver. And if they ask you what is the role of gallbladder, then you should know storage. Gallbladder is known for the storage of the bile. तो यहाँ पे आप कुछ नहीं करते, यहाँ पे आप करते हो storage. You will be known for the storage of bile is done by the gallbladder. So this is something should be clear to you. अब इसके बाद यहाँ पे क्या होगा कि आपने बाइल को रख दिया ब्लैडर के अंदर। आप यहाँ पे देख सकते हो, यू कैन सी द पिक्चर ऑफ द गॉल ब्लैडर ओवर हियर, राइट? यू कैन सी ओवर हियर द पिक्चर। अब ये बाइल जूस करता क्या है, व्हाट दिस बाइल जूस इज बेसिकली नोन फॉर, राइट? इतना याद रखना कि बाइल जूस बनता कहाँ पे, उसे रखते कहाँ पे। नाउ लेट्स सी व्हाट दिस बाइल जूस इज नोन फॉर। सो लेट्स सी ओवर हियर। सो व्हेन वी डिस्कस द बाइल जूस, यू शुड नो वन थिंग। जो आपका जो बाइल जूस होता है, जिसको हमारा लिवर बना रहा है, the bile juice is being formed by the liver, it will have two things. It will have bile salts and bile pigments. इसमें आपको दो चीजें मिलती है। It will have bile salts, it will have bile salts, and it will also have bile pigments. Okay, तो ये दो चीजें आपको मिलती है आपके बाइल जूस के अंदर। हमें बाइल पिगमेंट को इग्नोर करना है फिलहाल के लिए, हम बाइल सॉल्ट पे फोकस करते हैं। व्हाट दिस बाइल सॉल्ट्स आर नोन फॉर? सो सी, दे विल हेल्प इन द लिपिड डाइजेशन, दे विल हेल्प इन द लिपिड डाइजेशन। तो देखो यहाँ पे होता क्या है, समझो आपका लिपिड का मॉलिक्यूल है, समझो आपका एक बड़ा सा लिपिड का मॉलिक्यूल है, यू हैव दिस लार्ज लिपिड मॉलिक्यूल ओवर हियर। ओके, सो दिस इज माय लार्ज लिपिड मॉलिक्यूल। सो दिस लार्ज लिपिड मॉलिक्यूल इज कन्वर्टेड इनटू अ स्मॉलर लिपिड मॉलिक्यूल विद द हेल्प ऑफ द बाइल सॉल्ट। तो बाइल सॉल्ट आपका आके इसको स्मॉलर लिपिड ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट करेगा। सो नाउ दिस विल बी ब्रोकन डाउन एंड यू विल गेट स्मॉलर लिपिड ड्रॉपलेट्स। तो अब मेरे जो बड़ा सा जो मेरा यहाँ पे बाइल था, सॉरी लिपिड था, नाउ आई हैव स्मॉल लिपिड ड्रॉपलेट। यू हैव स्मॉल लिपिड ड्रॉपलेट्स। ओके, सो दैट इज समथिंग यू विल गेट टू सी कि आपके लार्जर लिपिड ड्रॉपलेट्स को, लार्जर लिपिड मॉलिक्यूल को आप कन्वर्ट करते हो इनटू द स्मॉलर लिपिड ड्रॉपलेट्स, और ये करने के लिए आपकी बाइल यहाँ पे मदद करता है। सो बाइल इज नोन फॉर दैट। So bile is known to convert a large lipid molecules into smaller lipid molecules. Okay, और एक बार आपके smaller lipid molecules बन गए, once you have formed the smaller lipid molecules, then what will happen? आपका lipase आके अपना काम करेगा। So after that you will find इनके ऊपर मेरा जाके एक्ट करेगा मेरा लाइपेज। याद करेगा लाइपेज आया था पैंक्रियाज में से। So लाइपेज जो मेरा यहाँ पे एंजाइम है, this will come and will start digesting the smaller lipid molecules. So please इतनी बात याद रखना, without bile juice you cannot have digestion of lipid taking place. बिना बाइल जूस के लिपिड का डाइजेशन आपका हो नहीं सकता, कि बाइल जूस के जो बाइल सॉल्ट्स होते हैं वो लार्जर लिपिड मॉलिक्यूल्स को स्मॉलर में कन्वर्ट करेंगे, एंड देन यू विल फाइंड कि आपका लाइपेज आके उन पे काम करके उन्हें डाइजेस्ट करेगा। तो ये एक इवेंट आप यहाँ पे याद रखना। विदाउट दिस इवेंट, सो अज्यूम दैट अगर आपका बाइल जूस नहीं बन रहा, फॉर सम रीजन नहीं बन रहा या आ नहीं रहा इंटेस्टाइन के अंदर, देन एक्सपेक्ट मत करिएगा कि आपका यहाँ पे लिपिड डाइजेशन होगा। देन यू विल नेवर फाइंड lipid digestion happening in the intestine. So this should be also clear to you. ठीक है, तो याद रखना यहाँ से आपका ब्लैडर में से आपका आएगा सारा सामान into the small intestine. तो इतनी चीज आपको यहाँ पे याद रखनी। There are a few things you have to know about the liver, bile juice and even in terms of your particular pancreas. तो इतनी बात आपको यहाँ पे याद रखनी है। Now let's see what will happen. So now your food has entered inside the small intestine. अगर आप intestine अगर आप देखते हो तो इसको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, small and large. तो स्टमक के बाहर जो आपको मिलेगा देखने के लिए, दैट इज द स्मॉल इंटेस्टाइन। सो प्लीज याद रखना, स्टमक से आपका जो खाना जाएगा, स्टमक से आपका जो डायरेक्ट अब यहाँ पे खाना जा रहा है, दैट इज गोइंग इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। नाउ स्मॉल इंटेस्टाइन itself will have three parts. Small intestine itself will have three parts. So let's see what are those three parts over here.
You will have something like your duodenum, जो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, छोटा सा आपको L शेप का यहाँ पे जो दिख रहा है, that's my duodenum. Then you'll have a jejunum, right? And the third part is going to be my ileum. Third part over here is my ileum. So these are the three parts you'll get to see in the small intestine. अब मैं आपको अगर simple language में या simple तरीके से बताऊं, so major amount of dilation will happen in the duodenum. A major amount of dilation will be seen happening in the duodenum. So duodenum is known for the major dilation. So major dilation of the food particle is been happening in the duodenum. So यहाँ पे आपका होगा, यहाँ पे आपका major dilation. So majority of the dilation or major amount of dilation is something which will be happening in my duodenum. On the other hand, jejunum and ileum are well known for the absorption of food. तो ये जो दो मेरे यहाँ पे areas हैं, they are well known for the absorption of food. They are well known for absorption of food. So this should be clear to you कि आपका major digestion आपका हो रहा है duodenum के अंदर, and jejunum and ileum are also known for digestion, but उसमें इतना नहीं होता. They are well known for your absorption of the food particles. तो ये बात आप यहाँ पे याद रखना, या आप कलेक्टिवली याद रख सकते हो कि आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में मेनली आपका सबसे ज्यादा अमाउंट में डाइजेशन और आपका एब्जॉर्प्शन आपको होते हुए आपको मिलेगा. लार्ज इंटेस्टाइन में इतना कुछ ज्यादा इवेंटफुल चीजें होती नहीं है. स्मॉल इंटेस्टाइन आपकी वो जगह है जहां पे आपका मेजर डाइजेशन और आपका एब्जॉर्प्शन यहाँ पे होता है. इतना पहले आप याद रखना. एंड जो फर्स्ट पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का, दैट इज माय डियोडिनम, देन यू हैव जेजुनम एंड देन यू हैव द इलियम. और जो भी आपका पैंक्रियास से एंजाइम आ रहा है, या आपका गॉल ब्लैडर से आपका बाइल जूस आ रहा है, एवरीथिंग विल बी सेंट इनटू द डियोडिनम. ये सारी की सारी चीजें आपकी डायरेक्टली आएगी आपके डियोडिनम के अंदर. आप देख सकते हो ये जो पर्पल कलर का एरिया मेरा यहाँ पे, दैट्स अ डियोडिनम. ठीक है, तो ये सारा कंटेंट पैंक्रियास से या ब्लैडर से सबका सब कंटेंट आपका आएगा डायरेक्टली आपके डियोडिनम के अंदर. ओके, और स्टमक से भी आपका सारा कंटेंट जो पहले आता है, दैट विल कम अंडर द डियोडिनम के अंदर ही वो आपका यहाँ पे आ जाएगा. सो दिस शुड बी क्लियर टू यू कि यहाँ पे आपका हो क्या रहा है. ओके, क्या यहाँ तक बात आपको समझ आ रही है? आर दिस थिंग्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू यहाँ तक? Yes, sir. Alright, or you can just give me a quick thumbs up. अगर चीजें समझ आ रही हो, then you can give me a quick thumbs up so I can like move ahead with this. So now let's see something else. ये हमने यहाँ पे देख लिया. Now after this what will be happening? तो आपका खाना आ चुका है इंटेस्टाइन के अंदर, right? डाइजेस्ट हो रहा है वो, right? So you'll find everything will get digested. अब हम यहाँ पे एक बार फिर देखते हैं हमारे एंजाइम्स कहाँ से आए थे. सो यू नो दैट यू वर फाइंडिंग योर एंजाइम्स कमिंग फ्रॉम सर्टेन लोकेशंस. तो अगर मैं बात करता हूँ मेरे एंजाइम्स की, सो एक तो मेरा एंजाइम आ रहा था, मेरे आ रहे थे पैंक्रियास से आ रहे थे. सो पैंक्रियास से आई वाज गेटिंग नंबर ऑफ एंजाइम्स, दैट्स वन थिंग वी हैव सीन. उसके साथ साथ यू विल आल्सो फाइंड कि आपके इंटेस्टाइन के वॉल से भी एंजाइम्स आते हैं. इवन फ्रॉम द इंटेस्टिनल वॉल या इंटेस्टाइन के वॉल से भी आपके कई सारे एंजाइम्स आएंगे. तो याद रखना, पैंक्रियास से तो आपके एंजाइम्स आ ही रहे हैं, और जो पैंक्रियास से जो आपके एंजाइम्स आ रहे थे उनका हम नाम भी लिखते थे. दे वर कॉल्ड एज माय पैंक्रेटिक एंजाइम्स. दैट कॉल्ड एज माय पैंक्रेटिक एंजाइम्स, या पैंक्रेटिक जूस भी आप उसे बोल सकते हो, बट आपके लिए विल जस्ट राइट एंजाइम्स ओवर हियर. इनको हम बोलेंगे यहाँ पे एज अ पैंक्रेटिक एंजाइम्स. और इंटेस्टाइन की वॉल से जो मेरे एंजाइम्स आ रहे हैं, इनको मैं बोलूंगा यहाँ पे एज अ इंटेस्टाइनल एंजाइम्स. इंटेस्टाइनल एंजाइम्स, इनको हम कई बार इंटेस्टाइनल जूस भी कहते हैं. वी आल्सो समटाइम कॉल देम एज इंटेस्टाइनल जूस, बट आप ये एंजाइम टर्म आप यहाँ पे याद रखना. सो ये सारी चीजें आपकी आ रही है आपके स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, एंड दे विल हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ द फूड. तो इतनी चीज आपको याद रखनी है, दैट मेजर डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन इज हैपनिंग इन द स्मॉल इंटेस्टाइन. और ये सब करने के लिए आपके ये सारे एरियाज से आपके एंजाइम्स आएंगे. ओके, सो दिस शुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू. अगर मैं आपसे पूछूं कि बाइल जूस कहां पे स्टोर किया जाता है, देन व्हाट विल बी द आंसर ओवर हियर? वेयर डू यू फाइंड बाइल जूस गेटिंग स्टोर्ड? You can directly unmute yourself and answer. आप directly unmute करके answer करते हैं. Gallbladder. Right. Gallbladder will be the location where are you finding the bile juice will be stored. तो वहां से भी जो आपका कंटेंट आ रहा है वो भी आपका स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ही आएगा. ओके, so that should be clear to all of you. And please याद रखना कौन सा एंजाइम आपका क्या कर रहा था. Now let's assume, so I'll just write over here, major amount of digestion and absorption will happen in the small intestine. So like you will find something I have already mentioned over here, that you will find major digestion and absorption will happen in the small intestine.
अब ये एक बार आपका यहाँ पे हो जाता है ना, एक बार आपके यहाँ पे डाइजेशन हो जाता है, देन व्हाट विल हैपन, योर फूड विल नाउ मूव इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन। यहाँ से आपका जो खाना होगा वो आपका मूव करेगा इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन। नाउ बिफोर गेटिंग इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन, देयर इज वन मोर थिंग यू हैव टू रिमेंबर। एक और चीज आप यहाँ पे याद रखिए आपके लार्ज इंटेस्टाइन में जाने से पहले। सी, इफ यू ऑब्जर्व इंटेस्टाइन इन एनिमल्स, अगर आप इंटेस्टाइन अगर एनिमल्स के अंदर ऑब्जर्व करते हो, सो यू विल फाइंड दैट herbivores will have a longer intestine. So they tend to have a longer intestine. Okay, and carnivores are going to have a shorter intestine. So carnivores over here are known to have a shorter intestine. So इनके पास आपको मिलेगा देखने के लिए आपको यहाँ पे shorter intestine. अब आपको यहाँ पे एक चीज याद रखनी है कि कार्निवर्स में शॉर्ट इसलिए होता है बिकॉज दे डोंट हैव टू डाइजेस्ट द सेलुलोज। हर्बीवर में आपका इंटेस्टाइन का लेंथ काफी लंबा होता है बिकॉज यू हैव टू डाइजेस्ट द सेलुलोज। सो यहाँ पे आपको करना होता है आपका डाइजेस्ट यहाँ पे आपका सेलुलोज, एंड बिकॉज ऑफ दैट you will be finding that herbivores are known to have a much more longer intestine. The same is not seen with the carnivores. इनका intestine काफी छोटा होता है because they have to digest what? प्रोटीन नहीं खाते वो लोग, मीट खा रहे, प्रोटीन खा रहे, सो उनको लंबे intestine की जरूरत नहीं होती। तो ये बात आप यहाँ पे याद रखना। Now, this is the picture which I have to explain. See, अब यहाँ पे क्या हो रहा है that they are talking about the intestine. ये intestine की पिक्चर है आपकी। So let's see intestine में आपको क्या मिलेगा। तो अगर आप इंटेस्टाइन को अगर आप ध्यान से देखोगे ना, देन यू विल हैव सच फोल्डिंग्स इन द इंटेस्टाइन, यू विल गेट टू सी सच फोल्डिंग्स इन इंटेस्टाइन। और ये जो फोल्डिंग्स आपको यहाँ पे मिलती है, दिस फोल्डिंग्स आर कॉल्ड एज बाय विलाई। सो इंटेस्टाइन के अंदर आपको ऐसी फोल्डिंग्स मिलेगी एंड दोस फोल्डिंग्स ओवर हियर आर कॉल्ड एज बाय विलाई, राइट। अगर आप विलाई को अगर मैग्नीफाई करके देखते हो, अगर आप विलाई को अगर आप मैग्नीफाई करके देखते हो, देन आपको क्या दिखेगा, विलाई के ऊपर जितने भी आपके सेल्स हैं, यू कॉल देम एंट्रोसाइट्स, ये जो आपके सेल्स हैं यहाँ पे, these are my एंट्रोसाइट्स, और उनके ऊपर भी आपको लाइक फिंगर लाइक हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स आपको मिलेंगे यहाँ पे। सो विलाई को अगर तुम मैग्नीफाई करके देखोगे तो वहां पे भी आपको हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स आपको ऐसे मिल जाएंगे। सो दिस हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स ऑन द विलाई आर कॉल्ड एज मैक्रोविलाई। इनको हम बोलेंगे यहाँ पे एज अ माइक्रोविलाई। अब अगर आपसे कोई पूछे कि यार ये माइक्रोविलाई और विलाई कर क्या रहा है यहाँ पे, लाइक व्हाट दे आर नोन फॉर, सो याद रखना हैविंग सच काइंड ऑफ इंटेस्टाइन इंक्रीजेस द सरफेस एरिया। अगर आपके इंटेस्टाइन में ऐसी फोल्डिंग होगी तो इससे क्या होगा, आपका सरफेस एरिया इंक्रीज होता है। सो दिस इज गोइंग टू इंक्रीज द सरफेस एरिया, दिस इज गोइंग टू इंक्रीज द सरफेस एरिया। एंड द होल आइडिया ऑफ इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया, ये सब आप इंक्रीज यहाँ पे इसलिए कर रहे हो। अब बताइए क्या क्वेश्चन आपका, बोलिए आप राज बताइए। Sir, could there be further divisions, like, for example, a division of villi here is microvilli? Could there be a division of microvilli, or do we not have a sufficient technology currently to prove that is there a subdivision or not? Okay, so beyond macrovilli you don't have anything. So we have seen that. We have means the gastrologists have seen that, even the other biologists have seen that, that beyond macrovilli you don't have another division. So what happens is these cells are simply going to directly absorb the food particles. Okay, यही सेल आपके यहाँ पे फूड पार्टिकल को एब्जॉर्ब करेंगे एंड विल बिकम अ पार्ट ऑफ माय लाइक विल गेट इनटू द अल्टीमेटली इनटू द ब्लड स्ट्रीम, दैट विल गेट इनसाइड द ब्लड स्ट्रीम। सो यू वोंट हैव फर्दर मोर डिवीजन बियॉन्ड द माइक्रोविलाई। अगर होता तो अब तक पता चल जाता, ओके, बट अपेरेंटली वी ओनली हैव अ माइक्रोविलाई एंड दैट इज समथिंग व्हिच विल बी प्लेइंग द रोल अलोंग विद द विलाई इन इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया, ठीक है। एंड या, सो अलोंग विद दैट व्हाट विल बी हैपनिंग, सो दिस इज गोइंग टू इंक्रीज द सरफेस एरिया। और अगर आप अपने यहाँ पे सरफेस एरिया इंक्रीज कर रहे हो, सो उसका रीजन क्या है इंक्रीज करने का, द एरिया गेट्स इंक्रीज। सो द होल आइडिया ऑफ हैविंग सच फोल्डिंग इज टू इंक्रीज द सरफेस एरिया। और इसका फायदा क्या होता है, इन योर डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। दिस विल बेसिकली हेल्प इन द डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, मेनली इन द एब्जॉर्प्शन के अंदर आपको हेल्प करेगा। सो इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर द डाइजेशन, सो दिस एक्चुअली हेल्प्स इन द डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। तो ये बात याद रखना कि आपको विलाई और माइक्रोविलाई आपको मिलेंगे आपके इंटेस्टाइन के अंदर, एंड दे विल अल्टीमेटली हेल्प यू आउट इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन एंड दे विल आल्सो हेल्प मेनली इन द एब्जॉर्प्शन। तो ये इतना आपको यहाँ पे याद रखना है। अब इसके बाद आप एक और चीज यहाँ पे याद रखिए, दैट आपने विलाई से अपने खाने को एब्जॉर्ब कर लिया, और खाने को एब्जॉर्ब करने के बाद क्या होगा, यू विल हैव द ब्लड वेसल्स। यहाँ पे आपकी ब्लड वेसल्स बनी हुई आपको मिल जाएगी, जो यहाँ पे दिखाई नहीं दे रही है आपको,
बट मैं आपको बाद में दिखा दूंगा. So you'll have blood vessels somewhere over here. तो जो भी आप खाना एब्जॉर्ब कर रहे हो, they will directly get into the blood vessels. So these are all going to be my blood vessels. याद रखना सारे आपके विलाय के अंदर you will have all those blood vessels, और इन ब्लड वेसल्स के अंदर ही आप अपना खाने को एब्जॉर्ब कराते हो. सो इन दिस ब्लड वेसल ओनली यू विल बी मेकिंग श्योर दैट योर फूड गेट एब्जॉर्ब. तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखते हैं. सो दिस इज वन थिंग यू हैव टू. सो यू विल फाइंड दिस थिंग थ्रू आउट द इंटेस्टाइन. आपका जो पूरा स्मॉल इंटेस्टाइन है उसके अंदर आपको ये चीज आपको देखने के लिए मिल जाएगी. एंड दे विल हेल्प इन द डायजेशन एज वेल एज द एब्जॉर्प्शन. दे इंक्रीज द सर्फेस एरिया. सो दैट शुड बी क्लियर टू यू. ओके, तो यहाँ से आप कुछ नहीं कर रहे हो, आपका खाना डाइजेस्ट हो चुका है. जो भी डाइजेस्ट करना है वो आप यहाँ पे हो चुका है. अब आप सिर्फ खाने को आप यहाँ पे एब्जॉर्ब करके ले आओगे आपके ब्लड स्ट्रीम के अंदर. That is what we have done. Now before moving into the large intestine, you can raise your hand and answer this question. Which of the following digestive gland are associated with the alimentary canal? इनमें से कौन से glands हैं आपके जो alimentary canal के साथ आपके यहाँ पे associated होते हैं? So quickly raise your hand and try to answer this. Anyone? सर बताइए क्या आंसर होगा? All of these. Right. So you'll find liver, pancreas, and salivary gland. All of them are going to be the right answer over here in terms of the digestive gland which are involved in the alimentary canal. Yes. ठीक है. How many salivary glands are present in the human body? अब ये आपको सोच के करना पड़ेगा. Like एकदम से आंसर मत करना. Like think a bit and then answer this. So how many salivary gland you can find in the human body? Anyone? Try to think and answer. कितनी glands आपको मिलेगी आपके buccal cavity के अंदर? Quickly. No one. मुकेश बताइए क्या आंसर होगा? 6. Option Right. D. 6 is the correct answer. Yes, you have 3 pairs, so that's why 6 is going to be the correct answer over here. बिल्कुल सही. True. The function of gallbladder is your gallbladder is going to be what? So let's see how many of you can raise your hand and answer this. बताइए तुषार क्या आंसर होगा? Storage of bile. Storage of bile. बिल्कुल सही. You will find storage of bile is something is done by the gallbladder. That is what my gallbladder is known for. Storage of bile. Can anyone tell me who is going to make the bile juice? आपका bile juice बनाता कौन है? Anyone? आकाश बताइए. Sir, the liver. Right. And can you also tell me what the bile is going to have? Bile के अंदर दो चीज होती है. What are the two things? Yes, liver में bile juice बनाया जाता है. उसमें दो चीजें हमें bile में मिलती थी. Those two things are what? Okay, Trusha, you tell me. I remember one that is bile salt. Right, bile salt and bile pigments. Bile salt और bile pigment आपको मिलते हैं आपके bile juice के अंदर. Okay. Then think wisely and tell me इसमें से कौन सी चीजें आपके यहाँ पे सही है? Pancreas secretes. Pancreas क्या क्या secrete कर सकता है? So yeah, you can just raise your hand and tell me. Anyone? आकाश बताइए. Yes, sir, all of these. Right, all of these. So Akash, also tell me out of these 3 options, how many of them are going to be the enzyme? How many of them are going to be hormones? कौन कौन इसमें hormone है? Sir, so it will be insulin. And I'm not sure, but it may be glucagon because Yes, I know that insulin and glucagon are basically opposites of each other. Right. So One stores the glucose and one is the storage of glucose that body. I mean, insulin stores the excess glucose in bloodstream, and glucagon utilizes that excess glucose that has been stored in the body. Right, very true. And in a state of emergency or in a state of requirement, glucagon will do the job of releasing the glucose into the bloodstream. Yes, that's something we have seen. अच्छा ये भी आंसर बता सकते हो आप लोग. लाइसोजाइम बकल कैविटी में हमने देखा था. सो व्हाट इज इट्स प्रॉपर्टी? इनमें से कौन सी इसमें से आपकी प्रॉपर्टी उसकी यहाँ पे लाइक यहाँ पे रिलेट कर सकते हो आप? क्वेश्चन नंबर 84. क्विकली आंसर दिस. इट्स अ सिंपल क्वेश्चन. लाइसोजाइम इन द बकल कैविटी इज नोन फॉर व्हाट? क्या चीज के लिए जाना जाता है? एनीवन? We have done this thing, Baba. We have done this thing. आज भी हमने रिवाइज किया था, पहले भी बहुत पहले ऐसे हमने किया था. No one. If you remember, I have told you something. Lysozyme is going to be having the antimicrobial property. It will have the antimicrobial property. ये बात अभी अभी मैंने आपको बताई थी थोड़ी देर पहले. So that means they can kill the microbes. So in that case, I can say it is antibacterial agent. अगर कोई बैक्टीरिया आपके माउथ के अंदर एंटर करता है तो उसे वो आराम से वहां पे आपका डाइजेस्ट कर सकता है. सो याद रखना, दैट इज गोइंग टू बी अ करेक्ट आंसर ओवर हियर फॉर माय लाइसोजाइम जो आपको माउथ में मिलता है. ओके, सो नाउ आफ्टर दैट यू हैव अ लार्ज इंटेस्टाइन. नाउ वी कैन रैप अप द क्लास बाय डूइंग दिस फ्यू लास्ट थिंग ओवर हियर. याद रखना लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर यहाँ पे क्या होगा? लार्ज इंटेस्टाइन इज मेनली नोन फॉर वाटर एंड मिनरल एब्जॉर्प्शन. इट इज मेनली नोन फॉर वाटर एंड योर मिनरल एब्जॉर्प्शन. So large intestine के बारे में याद रखेंगे आप लोग यहाँ पे that this is known for your water and mineral
एब्जॉर्प्शन। सो ये बात आप यहाँ पे याद रखना, वाटर और मिनरल एब्जॉर्प्शन के लिए ये जाना जाता है। एक बार आपका वाटर एंड मिनरल आपका एब्जॉर्ब हो गया, देन उसके बाद जो आपका खाना रहेगा इसके अंदर, दैट विल बी द अनडाइजेस्टेड फूड। आफ्टर दैट व्हाटएवर यू हैव ओवर हियर इज गोइंग टू बी द undigested food. After that, undigested food is going to move and will be brought into the rectum. तो इसको आप लेके आओगे आपके रेक्टम के अंदर, and from rectum that will be thrown out via anus. So rectum में आप अपने undigested food को रखते हो, that becomes your fecal matter, and then वहां से अपने fecal matter को आप बॉडी के बाहर निकालोगे via anus. So large intestine, याद रखना, is basically known for water and mineral absorption. That is what it has been known for. I'll just add one more thing over here. एक चीज बोलूंगा, याद रखना, ठीक है? आपका जो large intestine यहाँ पे होता है ना, आपका ये वाला जो एरिया है, ये वाला जो एरिया यहाँ पे, इसे हम बोलते हैं सीकम. This area over here is called as my cecum. Okay? और ये जो आपका एरिया होता है, ये जो पाउच लाइक एरिया होता है, सीकम जो पाउच लाइक एरिया होता है, याद रखना इसके अंदर आपको कई सारे बैक्टीरिया मिलते हैं. यू गेट अ वेरी ह्यूज अमाउंट ऑफ माइक्रोफ्लोरा. यू गेट अ वेरी ह्यूज अमाउंट ऑफ माइक्रोफ्लोरा जो आपके स्टमक में आपको मिलता है. तो याद रखिएगा आपके इंटेस्टाइन के अंदर, नॉट इन स्टमक, आपके इंटेस्टाइन में, लार्ज इंटेस्टाइन में आपके कई सारे बैक्टीरिया रहते हैं. उनको हम जनरली कहते हैं एज अ माइक्रोफ्लोरा. नाउ दीज बैक्टीरिया आर गोइंग टू बी प्लेइंग सम बेनिफिशियल रोल्स. ये आपके बॉडी के लिए कुछ ना कुछ बेनिफिशियल रोल यहाँ पे प्ले करेंगे. लाइक कुछ ना कुछ आपको बना के देंगे. बेसिकली मैं कुछ एग्जांपल ले सकता हूँ. दे कैन हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ विटामिन B12 या कई अलग अलग टाइप के विटामिन को बनाने में आपकी मदद करते हैं. तो याद रखना आपके एलिमेंट्री कैनाल के अंदर कुछ बैक्टीरियाज हैं जो आपके लिए बेनिफिशियल होते हैं. उनका होना जरूरी भी है. ओके, आपने कई बार ये टर्म शायद कभी इंटरनेट पे सुना होगा, गट फ्लोरा. सो यू नीड टू हैव दैट फ्लोरा इनसाइड योर गट, जो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होता है, बिकॉज इट मेक्स नंबर ऑफ विटामिन फॉर यू, और बदले में आपको कोई नुकसान भी नहीं करता वो, और बस वहां पर रह रहा होता है. सो दैट इज सीन इन द सीकम. तो याद रखना सीकम के अंदर यू विल गेट टू सी अ large amount of bacteria can be seen. You can collectively call them as a microflora, and they are beneficial for us. Why? They are known to make different types of enzyme for us. तो ये बात आप यहाँ पे याद रखिएगा, ठीक है? So that is what we have done. So we have finally completed हमारा digestive tract. We have seen how the digestion happens in the human beings. So that is something we have seen. इतना अगर आप याद रखते हो, that is going to be good enough for you to get your questions correct, right? So that is something we have just completed. Next time जब हम लोग मिलेंगे, we'll be starting with the breathing and exchange of gases. So that is something we'll be starting with. मतलब we will understand the breathing process. Simple language वो बोलूँ तो that is something we'll try to understand. Large intestine में अगर इसको 3 पार्ट डिवाइड करते हैं आप, इस ascending colon, transverse colon and your descending colon. तो इसको like 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं. But main role याद रखना ये किसके लिए यहाँ पे जाना जाता है, ठीक है? So we have done the large intestine. Then we have seen, उसके पहले हमने देखा हमारे यहाँ पे intestine में you have this villi and macrovilli, and what they are known for ये हमने यहाँ पे देख लिया. They increase the surface area for digestion and absorption. After that, before that, we have seen the pancreas releasing the enzymes. उसके साथ साथ intestine से भी कई सारे enzymes आते हैं. We call them the intestinal enzymes. Okay. We have seen why herbivores will have a longer intestine than the carnivores. That is something we have seen. And then we have seen stomach. So sorry, we have seen the intestine और उसके 3 parts. Okay. और याद रखना आपका सारा सामान, पैंक्रियास, गॉल ब्लैडर, जहां से भी आपका सामान आ रहा है, इट इज ऑल कमिंग इन द योर डियोडिनम. एवरीथिंग इज कमिंग इन द डियोडिनम. अच्छा, दिस वन मोर थिंग आई वांट टू टेल यू ओवर हियर. मेरे जो पैंक्रेटिक एंजाइम्स है ना, कहाँ गए मेरे जितने भी यहाँ पे पैंक्रेटिक एंजाइम मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, राइट, ऑल द एंजाइम्स व्हिच आई हैव ओवर हियर, दे वर्क इन अ एल्कलाइन पीएच. याद रखना ये सारे एंजाइम्स, ये दोनों मेरे जो एंजाइम्स यहाँ पे हैं, they are going to work in the alkaline pH. ये सारे के सारे alkaline pH में काम करेंगे. So I can roughly say they will have a pH of around 7 से लेके 8 के बीच में. तो इस pH के अंदर ये हमारे एंजाइम्स, ये मेरे एंजाइम्स जो यहाँ पे, they are going to function. Okay, pancreatic and intestinal. तो इनका pH अलग होता है, स्टमक का pH अलग है, इनका pH यहाँ पे अलग होगा. तो ये हमने देख लिया. Then we have seen what is bile juice, कहाँ से आ रहा है, क्या कर रहा है. That is something we have seen. And we have also seen कि आपके enzymes जो होते हैं वो कौन से होते हैं पैंक्रियास से, amylase, trypsin, chymotrypsin and lipase. और ये क्या कर रहे हैं वो भी हमने यहाँ पे देख लिया. So these are the things we have done. We have also done the sphincters, and that is where your
digestion wala part gets completed, right? Now, if you have any kind of questions, then please go ahead and ask your questions. If you have any kind of questions right now, then please go ahead, unmute yourself, and you can ask your questions. Okay. Now, before we wrap up the class, we'll just run one small poll over here. एक फटाफट एक poll run करते हैं. Let's quickly run a poll, and then we can wrap up the class. Okay. So I'll just quickly run one poll. Just give me a minute. I know I have already taken your 7 extra minutes, but yeah, just wait a minute over here.